Hello everyone, welcome to Manual Education. In this video, we will talk about MH Law CT 5 years paper analysis of reasoning section. So, exam कब हुआ था? Exam was held on 8 October 2021 and as you know, MH Law CT के लिए हमारे सभी faculties exam देने जाते हैं and every year we provide you the exact analysis. So, इस year भी हम लोग आपको reasoning का analysis provide करेंगे. So, let's watch this video till the end. So Manual launches the batches for 2022 and 23 program for MH Law CT, CLAT and SLAT. So you can join our classroom or live lectures. You will get ebooks, shortcut tricks, doubt classes, recorded videos, topic tests, mock tests, WhatsApp group where query will be sought out, and then 10,000 plus questions, mentorship, everything is provided here. Just you need to contact to this number 8828581455 or else you can visit this website www.manualedu.com/lawentrance. So without wasting time, let's start with the first question. So first question was, select the option which is related to third number is the same way as the second number is related with the first number. So ये क्या है? Exactly, this is nothing but your analogy question. So आपको पता है analogy question कैसे solve करना है? मैंने पहले ही बताया था analogy questions you can expect 1 or 2 questions. So definitely exam में आया analogy के questions. So 25 is equal to 37. क्या करना होता है? We need to find out the relation with first का relation second के साथ होता है. Similarly third का relation fourth के साथ होगा. So 49 is to what? So first का relation second के साथ है. Let's find out. So 25 क्या है? It's a 5 square. So 5 का square है. 37 it's a 6 square plus 1. 6 square plus 1 कितना होता है? 37. Now same thing we need to do here also. So 79 is nothing but your 7 square. So यहाँ पे क्या पता चल रहा है? 5 square, 6 square, 7 square. Next has to be 8 square. So 8 square but 8 square plus 1 होना चाहिए. So plus 1 which is nothing but 8 square कितना होता है? 64. 64 plus 1 is nothing but 65. So your right answer is nothing but 65. So I hope सबका आंसर यही रहेगा. Let's solve second number question. Again this is related to your analogy question. So this is also your analogy question. दो questions आए थे आपको analogy के related. Select the option which is related to third word. Again same direction दिया यहाँ पे. Second word is related to first word. Man is related to biography. So nation is related to what? So we know man के बारे में अगर आपको जानना है, किसी person के बारे में आपको जानना है, so we need to read its biography. Okay, let's say अगर महात्मा गांधी के बारे में जानना है तो आपको उनकी biography read करनी पड़ेगी. Same thing if you wanted to read its nation, like कोई एक nation है उसके बारे में read करना है, so what exactly you need to do? आपको क्या read करना पड़ेगा? It's उसका history. So right answer is history, not geography, not map, not none of this. Okay, so right answer is history. Third question, ये बहुत important question था और बहुत easy question था, because same question we have solved in our classroom program, same as it is. Okay, question number 3. At what time in between 6 o'clock and 7 o'clock will be the minute hand and hour hand of a clock coincide with each other? So 6 o'clock to 7 o'clock के बीच में, okay, 6 o'clock to 7 o'clock के बीच में कभी मेरा दोनों hands coincide होंगे, which means दोनों के बीच में angle कितना होना चाहिए? The angle between two hand is nothing but 0 degree. Coincide मतलब क्या होता है? Angle is 0 degree, obviously. So the formula is we need to find out the time. Time के लिए formula क्या है? T is equal to 2 by 11 A1 plus A2. मैंने बताया था आपको पूरा क्लॉक सिर्फ दो फॉर्मूले पे. फर्स्ट फॉर्मूला इज नथिंग बट योर T which is nothing but टाइम का फॉर्मूला and other formula is nothing but theta which is nothing but एंगल का फॉर्मूला. So let's find out what exactly you need to put in A2. A2 is nothing but your 0 degree. So just put 0. 2 by 11 A1. A1 की जगह पे मैंने बोला था क्या करना है? जस्ट कहां से कहां पे जाना है? 6 o'clock to 7 o'clock. So 6 o'clock से स्टार्ट कर रहे हैं and from 6 o'clock to 7 o'clock कितना डिग्री आप ट्रैवल करोगे? In 1 hour we travel 30 डिग्री. So 6 into 30 just put करना है आपको. Plus 0 तो सेम ही आंसर आएगा. So 2 by 11 6 into 30 plus 0. 6 into 30 is nothing but 180. 180 into 2 is nothing but 360. 360 divided by 11. 11 ones are 11. 11 threes are 33. Okay, 11 3s are 33, 3 remaining, 3 and 0. Okay, 3 and 0. So क्या आएगा? 11 2s are 22. So 32 and remaining is 8. So 32 8 by 11. So 6 o'clock 32 minutes 8 by 11 पे exactly both hands
will be coincide. 40 सेकंड्स का क्वेश्चन था ये, जस्ट 40 सेकंड्स, 40 to 45 सेकंड्स इसको लगेंगे सॉल्व करने के लिए. एंड मैन्युअल का स्टूडेंट हो गए तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी था लेक्चर में. सो आंसर इज 32 8/11. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड इफ द टाइम इज 4:20? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. ओके मैंने 7:20 बताया था, यहाँ पे सिर्फ 4:20 आया, वैल्यू सिर्फ चेंज हुए, दैट्स इट. फॉर्मूला तो वही है थीटा. अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है. अगेन ये क्लॉक का क्वेश्चन है. सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन. थीटा इज इक्वल टू 30h minus 11/2m. So just put the value 30 into h. h की जगह पे क्या पुट करना है, rn. rn कहां पे, 4 o'clock पे. So just put 4 minus 11/2 into minute. कितने मिनट्स है, 20 minutes. Just put 20. Simple and you will get the answer. So 30 into 4 120. 2 ones are 2, 2 tens are 20. So 11 into 10 is nothing but 110. So 120 से 110 गया, so we'll get 10. So 10 degree is your correct answer. So option number A, or we can say option A is your correct answer. Let's solve fifth number question. A clock seen on mirror shows 3:15. 3:15 मतलब क्या, 3 के बाद 15 minutes. So 3:15 पे एक मिनट, 3 o'clock and 15 मिनट पे एग्जैक्टली मिरर में हम लोग को चेक करना है कि उसका रिप्लिका क्या दिखेगा. ओके सो दिस इज नथिंग बट योर 3:15. ओके ये आपके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया यहाँ पे, सो दैट यू कैन इजीली गेट द आंसर. सो 3:15 विच इज नथिंग बट आपका क्लॉक यहाँ पे है, ऐसे है. ओके द करेक्ट टाइम शोन बाय द क्लॉक विल बी व्हाट. ओके सो इफ यू जस्ट आपको क्या करना है, उसका मिरर इमेज निकालना है. सिंपली मैंने बताया था मिरर इमेज में एक ही चीज याद रखनी है, मिरर इमेज इज नथिंग बट राइट हैंड साइड का पोजीशन चेंज करना है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड का पोजीशन चेंज करना है राइट हैंड साइड में. Now both hands are in right hand side, so just मुझे यहाँ पे इससे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है. सिंपल. सो जस्ट सी दिस, मिनट हैंड कहाँ पे, 3 o'clock पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, ये 9 o'clock पे आ जाएगा. सिंपल. देन ये 3 और 4 के बीच में है, सो थोड़ा सा ऐसे है, सो इसको भी थोड़ा सा इसे इस साइड लेके आओ, दैट्स इट. सो ये किसके बीच में रहेगा, 8 और 9 के बीच में. ओके सो क्या टाइम हो रहा है, 8:45. सो आंसर इज 8:45. So option number D is your correct answer. So what if you wanted to solve this question by using कुछ shortcut से कैसे solve कर सकते हैं, तो just easy है, इसको भी shortcut method से solve कर सकते हैं. Okay so without drawing a diagram, just subtract with 1160. 1160 मतलब 12 o'clock. So 12 से माइनस कर दो, 1160 जस्ट लिखो और उसे माइनस कर दो, कितना था 315. 315 माइनस कर दोगे then will get 60 में से 415 गया तो 45. 11 से 3 गया तो 8. So 8:45 is your correct answer. Either you can go by this way or else simply normal way जो है traditional, which is nothing but right को left लेना है, left को right लेना है. Simple. mirror image. Question number 6 बहुत बहुत easy question. Okay? ये अगर क्वेश्चन जिसने सॉल्व नहीं किया रहेगा ना तो देखो बहुत easy क्वेश्चन था. In a certain code language, big is written as 297, fad is written 614. How will DEAF, which means diff will be written in that code. Okay, so big के लिए कोड दिया है 297. Okay, so if you observe, B का रैंक कितना होता है 2, I का रैंक कितना होता है 9, and G's rank is nothing but 7. So G's forward rank is 7, I forward rank is 9, B forward rank is 2. तो उसका रैंक ही प्रोवाइड किया यहाँ पे. If you see fad, F forward rank is nothing but your 6, A forward rank is nothing but your 1, and D forward rank is nothing but 4. So 614 दिखा क्या? Yes, it is right. So same thing we need to do for diff also. So diff के लिए क्या आएगा? DEAF, diff. D forward rank is 4, E forward rank is nothing but 5, A forward rank is nothing but 1, F forward rank is nothing but 6. So answer is 4516. So option C is your correct answer. So ये जिसका सॉल्व नहीं होगा तो उसको ले एक ही डायलॉग हेरा फेरी का, कैसा लॉयर बनेगा रे तू. क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है. पेपर इतना इजी था कि यू कैन इजीली अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, आउट ऑफ मार्क्स मिलना चाहिए. इन सर्टन कोड लैंग्वेज ब्लॉक इज रिटन एज YOLX
PVW, then how OZFMXS will be written in that code language. तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजी है. ये भी क्या किसका क्वेश्चन है? दिस इज ऑल्सो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है. ओके, YOLXPVW. ओके, सो OZFMXS का कोड क्या होगा? ठीक है, फाइंड आउट करते हैं. सो B इज कोडेड एज अ Y. ठीक है, इसका क्या हो सकता है? सो इफ यू सी हियर, B का अपोजिट लेटर कौन होता है? B का अपोजिट लेटर होता है Y. ठीक सी दिस, A का अपोजिट लेटर होता है Z, B का अपोजिट लेटर होता है Y, C's opposite letter is nothing but X, D opposite letter is nothing but W. Like this way you have to find out. Okay, so see this, D's opposite letter is W, E's opposite letter is V. मैंने बताया था इसको कैसे याद रखना है. EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सो E के अपोजिट में V. ओके, CX, देन KP, KP के लिए कैसे याद रखने बोला था मैंने आपको? PK. जस्ट वो PK का मूवी है ना, उसको याद रखो, सिंपल. और एल्स यू कैन रिमेंबर केविन पीटरसन, मैंने बहुत सारे नेम बताए थे उसके. By doing this also you can remember. Okay, so same thing we need to do for this also. So O के अपोजिट क्या आता है? L. Z के अपोजिट क्या आता है? A. F के अपोजिट क्या आता है? Fun. So F के अपोजिट U. Then M, M के अपोजिट मैन्योर याद रखना है आपको, सिंपली M के अपोजिट N. Okay, मैन नहीं तो मैन्योर याद रखो. X के अपोजिट आता है, X के अपोजिट आता है C. Okay, S के अपोजिट क्या आता है? हनी सिंह. सो H के अपोजिट S, S के अपोजिट H. तो मैंने जो ट्रिक बताई थी, इफ यू रिमेंबर द ट्रिक देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर. 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए. सो आंसर इज लॉन्च. ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. अगेन दिस इज योर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव वॉइस कोडिंग डिकोडिंग. ओके, सो इफ क्लॉक इज रिटन एज टेलीविजन, television is written as radio, radio is written as oven, oven is written as grinder, grinder is written as iron. Then lady cook food in what? Food कहाँ पे cook होता है? Oven में. But oven is written as grinder. So right answer is grinder. Option number C is your correct answer. So बहुत easy question है. Almost कितने question है? 1, 2, 3 questions from coding decoding. क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग. तो कितने क्वेश्चन आ गए? 4 क्वेश्चंस. सो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज HAPL एंड LESH इज रिटन एज क्लाउड बर्स्ट. ओके, ये मैंने बताया था आपको क्या करना होता है इस कोडिंग डिकोडिंग में. कॉमन पार्ट फाइंड आउट करना है, सिंपल. स्ट्रेंच आउच इज रिटन एज पिन बॉल. रेसबो स्ट्रेंच इज रिटन एज 9 पिन. ओके, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट वर्ड वुड मीन और व्हाट वर्ड कुड मीन क्लाउड 9. सो आई नीड टू फाइंड आउट क्लाउड एंड 9. लेट्स सी. सो इफ यू सी हियर, पिन इज कॉमन हियर. पिन यहां पे भी है, पिन यहां पे भी है. सो जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज कॉमन इन सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर. सेकंड में पिन कॉमन है एंड थर्ड में भी पिन कॉमन है. सिमिलरली इफ यू फाइंड द वर्ड और जो कोड है वो क्या है? स्ट्रेंच इज कॉमन एंड स्ट्रेंच इज कॉमन. So I got the code for pin. Pin is nothing but syringe. Pin is nothing but syringe. But I don't want pin. मुझे क्या चाहिए? 9 चाहिए. So this remaining part is for 9. So 9 is nothing but Resbo. So Resbo ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन में भी है, सेकंड में भी है एंड फाइनल में भी है, डी ऑप्शन में भी है. So we have only C ऑप्शन एलिमिनेट हुआ. Okay, then fine. What is the code for cloud? Cloud के लिए कोड क्या होगा? Cloud is in first number statement. Cloud first number statement में. So code can be, but we don't have burst. Common कहाँ पे नहीं है? Burst कहाँ पे भी common नहीं है. Cloud भी common नहीं है कहाँ पे भी. So क्या होगा कोड? एक तो HAPL होगा, नहीं तो LESH होगा. So आंसर ऐसे क्या होता है? Resbo and HAPL, नहीं तो Resbo और LESH, दोनों में से कोई भी एक. So let's find out the option. Respo OH, OH तो नहीं होना चाहिए. Obviously this should be out. Resbo and syringe, syringe तो नहीं होना चाहिए. Syringe is for pin, so this is out. So Resbo LESH, yes, this is right. So option number A is your correct answer. और same option I think so आपके यहाँ पे दिया था. This is your perfect answer. You can comment your answer. अगर आपका कुछ आंसर अलग होगा then you can also comment your answer.
सो मे बी रेस्बो HAPL भी दिया होगा और मे बी रेस्बो LESH भी दिया होगा, दोनों में से कोई भी एक आंसर, बोथ आर राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, नंबर सीरीज को क्वेश्चन। नंबर सीरीज के बहुत क्वेश्चंस आए थे, ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन नंबर सीरीज। सो क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, 8 18 क्वेश्चन मार्क 50, व्हाट एग्जैक्टली यहां पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। सो इफ यू सी हियर 8 18 देन क्वेश्चन मार्क एंड 50, सो 8 and 18 डिफरेंस इज नथिंग बट 10। मैंने बताया था इफ इंक्रीमेंट नॉर्मल हो रहा है, ओके, सिंपली एक ही मैंने बताया था वड़ा पाव वाला एग्जांपल, 8 रुपीज का वड़ा पाव और 8000 होता है, ओके, सो वहां पे क्या होगा, वहां पे लॉजिक क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक होगा ऑब्वियसली। एंड 8 रुपीज का वड़ा पाव अगर 80 रुपीज होता है, 90 रुपीज होता है, देन वहां पे क्या है, नॉर्मल इंक्रीमेंट है, सो इट इज नथिंग बट योर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लॉजिक है। सो हियर 8 रुपीज का वड़ा पाव कितना हो रहा है, 50 का हो रहा है, सिंपल। सो वी हैव टू यूज लॉजिक, कौन सा यूज करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का। सो 8 और 18 के डिफरेंस कितना है, +10, सो 8 + 10 इज नथिंग बट 18। 18 प्लस क्या करूंगा सो दैट ये मुझे वैल्यू मिलेगा, और उसमें क्या ऐड करूंगा सो दैट मुझे 50 मिलेगा। ओके ठीक है, सो कुछ लोग बोलेंगे 18 + 10 करते हैं सो दैट विल गेट 28, बट 28 + 10 इज नथिंग बट 38, तो 38 है क्या यहाँ पे, नो इट इज नॉट लाइक दैट। सो उसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो और ऐड करना पड़ेगा, सो दैट इफ आई ऐड 14 ऐड करूंगा देन आई विल गेट 32, एंड 32 में +18 करूंगा सो आई विल गेट 50। सो यहाँ पे देखो +4 का इंक्रीमेंट है, 10 + 4 इज 14, 14 + 4 इज 18, सो आंसर क्या आएगा 32। सो 32 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सबका यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स सॉल्व 11 नंबर क्वेश्चन। अगेन सेम, दिस इज योर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, बट यहां पे क्वेश्चन देखो कैसे है, 21 9 21 11 21 13 21 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे 21 कॉमन है, तो क्या करना है, दिस इज योर अल्टरनेट सीरीज, इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज, मैंने पहले बताया था अल्टरनेट सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड ये आ गया। सो अल्टरनेट सीरीज में क्या करना है, 21 को छोड़ के बाकी सब देखो, 9 देन +2 इज 11, 11 + 2 इज नथिंग बट 13, and 13 + 2 is nothing but 15. So right answer is 15. Option number B is your correct answer. Next, question number 12. If Asha is a sister of, ये क्वेश्चन आ गया ब्लड रिलेशन का, ओके, और ब्लड रिलेशन में भी कौन सा आ गया, दिस इज नथिंग बट योर ये थर्ड नंबर टाइप जो था मैंने बताया था, थर्ड टाइप, ओके। सो ये टाइप सबको डिफिकल्ट लगता था उस टाइम पे, लेकिन जिन लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया रहेगा उनको डेफिनेटली ये आंसर आया रहेगा। Asha is a sister of daughter of Seema's son. How is Asha is related to Seema? Okay. Asha कौन है, ये सिस्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल Asha is a sister. Asha सिस्टर है, सिस्टर है किसकी, सिस्टर है किसकी, किसी की डॉटर की, किसी की डॉटर, सो समथिंग ये डॉटर है, ओके, किसकी डॉटर है, सीमा के सन की, सीमा का सन, तो ये सन है किसका, इसकी डॉटर की सिस्टर आशा है, किसकी ये डॉटर, किसका सन है, ये सीमा का सन है, सो ये सीमा हो गई। सीमा कौन है मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, सीमा कैन बी मेल पर्सन, सीमा कैन बी फीमेल पर्सन, ओके, डोंट थिंक ये सीमा नाम फीमेल है तो फीमेल हो सकता है, समटाइम्स ऐसे होता है कि सम नेम्स आर लाइक मेल में भी होते हैं और सम नेम्स आर इन फीमेल आल्सो, बहुत सारे ऐसे नेम्स है, दैट्स व्हाई डोंट थिंक कि ये नेम से इसको जज मत करो, ओके। यहाँ पे आशा से हम लोगों ने जज नहीं किया, उसने एग्जैक्टली मेंशन किया आशा इज अ सिस्टर, sister which means she is female, okay, then only you can judge like कि आशा फीमेल है, okay। how is आशा related to सीमा, आशा कौन है, सीमा के, सीमा के सन की डॉटर, सन की डॉटर मतलब ग्रैंड डॉटर, so answer is option number B, ग्रैंड डॉटर। 13 number question, again this is your blood relation question. If a woman introduce a man as the son of brother of her mother, how is man related to woman? वुमन इंट्रोड्यूस कर दिए मैन को, ओके, वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन एज, मैन कौन है, मैन एज सन, सन है किसका, ये सन है, ओके, किसकी, किसका, ब्रदर ऑफ हर मदर, ब्रदर ऑफ हर मदर मतलब वो जो लेडी है उसके मम्मी का भाई, उसका लड़का है वो, तो मम्मी के भाई का लड़का मतलब क्या होता है, लेट्स से ये लेडी है, लेडी के मदर, मदर का
भाई, उसका लड़का, उसका सन है, ये मैन, तो ये लेडी का कौन होता है? हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमन? ओके, वो वुमन का कौन होगा? वुमन का ऑब्वियसली ब्रदर होगा, बट ब्रदर एक्चुअली ब्रदर नहीं होगा, कजिन ब्रदर होगा, सो इट्स अ कजिन। सो ऑप्शन इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी, कजिन होगा। ओके, यहाँ पे ब्रदर भी दिया रहेगा, ब्रदर इज फॉर ओनली आपके भाई, सगा भाई होगा तो ही आपको आंसर मार्क करना है ब्रदर, और एल्स यू नीड टू मार्क कजिन। ओके, सो ब्रदर इज रॉन्ग, आंसर इज कजिन। Question number 14. Select the correct option that will be fill in the blanks. Complete the series. Again, series का question. Very good. So A C E G I K. ये तो बहुत easy है. Okay. We need to find out this question mark. A C. तो मैंने बताया था first letter and second का first letter. So second क्या दिया? Second pair का first letter क्या है? E. A से E. A से E देखो B C D E. So +4. E से I, E F G H I, so again +4. So same thing we need to do for next also. Next pair के लिए भी यही करना है. I J K L M, so next should be M. M से आना चाहिए. Same thing you need to do for second letter also. C से G देखो, C D E F G, again +4. Okay, same thing यहाँ पे भी हो रहा है. G और K, H I J K, again +4. Okay, और K के बाद +4 कितना आएगा? K L M N O, so it should be O. So MO is your right answer. So option number D is your correct answer. Now let's see this figure. यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया था? Find out odd one out. Okay, so odd one out we need to find out. So if you see here, ये फिगर ऐसे दिया था. I think so this figure is right. I think so. A, B, C and D. ओके, इसमें कुछ करेक्शन होगा तो यू कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। ओके, सो ए बी सी डी, यहाँ पे देखो फर्स्ट इफ यू सी हियर वन एरो इज गिवन हियर एंड वन एरो इज गिवन हियर, बैलेंस। ओके, वन एरो इन फ्रंट साइड और वन एरो इज इन बैक हैंड साइड। इफ यू सी हियर टू एरोज गिवन हियर एंड वन एरो गिवन हियर, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। थ्री एरो एंड थ्री एरो, अगेन यहाँ पे बैलेंस है। फोर एरोज एंड फोर एरोज, तो यहाँ पे बैलेंस है। ओनली बी ऑप्शन में बैलेंस नहीं है, सो ऑड वन आउट इज नथिंग बट बी, सो बी इज योर ऑड वन आउट। फाइंड आउट एंड ऑड वन आउट। ओके, ये क्वेश्चन में बहुत थोड़ा फनी था एक्चुअली। ईवी, ईगल, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच एंड इमू, इसमें ऑड वन आउट क्या है? सो एक ने मुझे बताया सर पेंगुइन, बिकॉज बाकी सब बर्ड्स है और पेंगुइन इज एनिमल। अरे पेंगुइन इज अ बर्ड एक्चुअली। ये वो मूवी देखा संजू मूवी, उसमें भी बताया था उसने, पेंगुइन इज नॉट एन एनिमल, इट्स अ बर्ड। ओके, सो पेंगुइन, all this all are animals, sorry, this all are birds, but the important thing is कीवी फ्लाई नहीं करता है। ओके, कीवी फ्लाइटलेस है। ओके, कीवी डज नॉट फ्लाई, ये वॉक करने वाले, और वी कैन से ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, इमू, ओके, ये फ्लाई नहीं करते हैं, सो फ्लाइटलेस है। सो एक्सेप्ट ईगल, ईगल फ्लाई करता है। सो आंसर इज ओनली बी। सो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, बी ओनली इज योर करेक्ट आंसर। ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, 4, 6, 12, 14, 28 एंड 30। सो वी नीड टू फाइंड आउट नेक्स्ट क्या होगा। सो 4, 6, सो लेट्स टेक अ डिफरेंस। 4 एंड 6 प्लस 2, यहां पे देखो 6 और 12, 6 का डबल हो रहा है। ओके, प्लस 6 हो सकता है, नहीं तो इंटू 2। देखते हैं क्या हो रहा है, दोनों अप्रोच चेक करके देखते हैं। 12 प्लस 2 इज नथिंग बट 14। ओके, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, 14 इंटू 2 कितना होता है? 28। यस, दिस इज राइट। यहाँ पे तो प्लस 14 हो रहा है, यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है। प्लस 6 एंड प्लस 14 एग्जैक्ट लॉजिक नहीं मिल रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली लॉजिक इज नथिंग बट प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए? प्लस 2। यस, 28 प्लस 2 इज 30। नेक्स्ट क्या आना चाहिए? इंटू 2। सो 30 इंटू 2 इज नथिंग बट 60। सो राइट आंसर इज 60। So option number B is your correct answer. Solve 18 number question. A and B are the child of C. C के दो child है, one is nothing but A and other is nothing but B. We don't know the gender. Child मतलब क्या हो सकता है? इधर मेल हो सकता है, इधर फीमेल हो सकता है. So we don't know the exactly what is the gender.
इफ सी इज द फादर ऑफ ए, सी फादर है, ए फादर है, बट बी इज नॉट सन ऑफ सी, सी का सन नहीं है, सन नहीं है, कौन है, सी का सन बी नहीं है, बी इज नॉट अ सन, सन नहीं है तो क्या हो सकता है, डॉटर हो सकता है, यस बी इज अ डॉटर। हाउ आर बी रिलेटेड टू सी, बी कौन है, सी का, so सी की डॉटर ऑब्वियसली, सो आंसर इज डॉटर एंड सी कौन है, फादर, सो डॉटर एंड फादर इज योर करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, दिस इज ऑल्सो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, ये इतने लेवल का बहुत इतना इजी क्वेश्चन पेपर था। 19 नंबर क्वेश्चन, select the correct option that will be fill in the blanks, complete the series, ELFA GLHA ILGA question mark MLNA। अब यहां पर देखते हो तो इफ यू सी हियर EFG so +2, GHI so again +2, IJK it should be K, so everything is start with the K, सब जो भी ऑप्शन है सब K से स्टार्ट हो रहा है, just write down K here। Now next letter is L L L, यहाँ पे भी L है, so L is common, so K के बाद L आएगा obviously, L is common in every word, okay every word में L is common। Now next is nothing but F and H, F G H it is +2, H I J it is +2 again, K J के बाद K L so it is again L, तो यहां पे मुझे क्या आएगा, K डबल L, ओके फाइन। नेक्स्ट लास्ट लेटर A, यहां पे भी A है, सो A इज कॉमन अगेन, सो A इज कॉमन, सो उसको एज इट इज लिख दो, सो K डबल L A इज योर करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, द गिवन सेट 538 इज इक्वल टू 725 813, तो और उसमें बताया सिमिलर नंबर इज व्हाट, सिमिलर नंबर क्या है। ओके, सो विल राइट डाउन दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया था, बट ये भी क्या इतना डिफिकल्ट नहीं था। ओके, सो 528 538 725 एंड 813 जस्ट नोट डाउन। ओके, वंस यू नोट डाउन दिस, टेक अ डिजिट, उनका सबका एडिशन ले लो, डिजिट का एडिशन ले लो। 5 + 3 इज नथिंग बट 8, 8 + 8 इज नथिंग बट 16, सो टोटल इज 16। ओके, 7 + 2 is nothing but 9, 9 + 6 is nothing but 14, so I got 14. 8 + 1 is nothing but 9, 9 + 3 is nothing but 12, so first I got 16, then 14 and the last one is nothing but 12, so यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का डिक्रीमेंट, 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है, so next has to be 10, जिसका भी जो भी ऑप्शन रहेगा उसका एडिशन क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। so if you see here 7 + 1 is 8, 8 + 2 is nothing but 10, so ऐसा ऑप्शन फर्स्ट में ही मिल गया, so ऑप्शन नंबर 1 is your right answer। so you can also check other option, 8 + 1 is 9, 9 + 1 is 9 + 4 13 हो जाएगा, which is wrong। 3 + 2 is 5, 5 + 8 is 13, this is also wrong। 9 + 1 is 10, 10 + 2 is nothing but 12, this is also wrong, so answer is nothing but option number A। टोटल कितना आना चाहिए, 10, so 7 1 2 is your correct answer। 7 + 1 is 8, 8 + 2 is nothing but 10। Let's solve the question number 21। 6 teachers teaches 6 subjects, chemistry, biology, media, maths, physics, computer science on different days of the week starting from Monday to Sunday। ये क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वेश्चन, पजल का क्वेश्चन आ गया, एंड वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया था आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। ओके, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नथिंग बट कनेक्टर मेथड, जो मैंने पहले आपको बताया था कनेक्टर मेथड क्या होता है, सीसी अप्रोच, सेम थिंग यू नीड टू यूज, दैट्स इट। And the second most important thing is nothing but static part। What is the static part here? Monday to Sunday, easily solve, 2 से 3 मिनट में exactly आपको आंसर मिल गया होगा। Okay, so first we will note down this Monday, Tuesday। Okay, so Monday, then Tuesday, Wednesday, Thursday, then Friday, Saturday, and the last one is nothing but Sunday। okay fine, let's put the values, actually values नहीं तो जो भी है। okay, so जो डेटा दिया है वो पुट करते हैं। okay, so media subject is scheduled just day before holiday, holiday यहाँ पे एक और दिया है। okay
Okay, one before that, one of the day is off. Okay, एक day off day है, which is nothing but one day is holiday, and no lecture is scheduled on that day. कोई भी lecture वहां पे schedule नहीं हुआ. ठीक है, fine. Media subject is scheduled just a day before holiday. Holiday के पहले एक दिन पहले मीडिया सब्जेक्ट शेड्यूल हुआ है, बट हॉलीडे कहाँ पे मुझे पता नहीं. ओके, 4 सब्जेक्ट वर बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड हॉलीडे. कंप्यूटर साइंस और हॉलीडे के बीच में 4 सब्जेक्ट है. ओके, और कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या हॉलीडे के बारे में? लेट्स फाइंड आउट. और कुछ हॉलीडे के बारे में दिया है क्या? नो 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 नो. और कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया कंप्यूटर साइंस के बारे में? हॉलीडे और कंप्यूटर साइंस के बीच में 4 होने चाहिए, यस 4 सब्जेक्ट होने चाहिए कंप्यूटर साइंस और हॉलीडे के बीच में. कंप्यूटर साइंस इज नॉट स्केड्यूल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे. कंप्यूटर साइंस मंडे और ट्यूसडे में नहीं होना चाहिए. ओके फाइन. व्हाट इफ आई स्केड्यूल हॉलीडे, यहां पे अगर स्केड्यूल करता हूं संडे को, तो मीडिया कहां पे करना पड़ेगा? सैटरडे. 4 सब्जेक्ट बिटवीन और 4 डेज बिटवीन हॉलीडे एंड कंप्यूटर साइंस. सो 1 2 3 4 एंड दिस इज योर कंप्यूटर साइंस. तो वो तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज उसने एग्जैक्टली मेंशन किया कंप्यूटर साइंस कभी नहीं होना चाहिए मंडे और ट्यूसडे. तो यहाँ पे तो रख नहीं सकते, दिस इज आउट. सो हॉलीडे मुझे ऊपर ही रखना पड़ेगा. सो हॉलीडे सबसे ऊपर भी नहीं रख सकता हूँ, बिकॉज हॉलीडे के ऊपर जस्ट और 1 डे बिफोर क्या है? मीडिया. सो दिस इज द ओनली ऑप्शन. एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास, नथिंग बट दिस. पुट कर दो 1 2 3 4 डेज है बिटवीन हॉलीडेज एंड कंप्यूटर साइंस. So just put computer science here. So always यहाँ पे क्या वर्क होगा? कनेक्टर मेथड. 3 स्टेटमेंट को मैंने कनेक्ट कर दिया and I got this value, okay, or I got this arrangement. Now next, maths is scheduled on Wednesday. मैथ्स को वेडनेसडे में डाल दो. केमिस्ट्री is scheduled just after physics. फिजिक्स के just after, but just before biology. केमिस्ट्री बायोलॉजी के just before है और फिजिक्स के just after. तो देखो केमिस्ट्री यहां पे होगा जस्ट आफ्टर किसके? फिजिक्स के. फिजिक्स के जस्ट आफ्टर एंड बायोलॉजी के जस्ट बिफोर. बायोलॉजी के जस्ट बिफोर. हो गया. दिस इज योर फाइनल आंसर. दैट्स इट. इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस थे. सो इफ यू सॉल्व बाय यूजिंग दिस वे देन यू कैन गेट आउट ऑफ मार्क. ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत इजी पेपर गया है, आई नो. If you have any questions or other questions आपने दिए होंगे, so you can also comment these questions on comment box. हम लोग definitely उसका आंसर देंगे. Okay? And if you wanted to join our Law CET batches for 2022 and 2023, you can contact to this number. And if you wanted to join classroom coaching, then we have 3 centers. One is nothing but Borivali, other is Vasai, and third number is nothing but Dadar. So you can visit our website manuoredu.com, or else you can follow our social handles like YouTube, Facebook, Instagram and Telegram. So check the link in the description. Thank you so much and all the best.